Namaste. Hope you're all having a wonderful beginning to 2021. I'm Anvi, and you're watching me on my segment Opinion Edge, where I like to talk about current political events, issues, and share my opinions and thoughts on what's happening around us in the world today. In my efforts to extend the dialogue and to expand the scope of discussions, this year I'm very happy to begin a series of interviews with people coming from different social and political backgrounds and not just talk about the events that are occurring around us, but rather to take a deeper look at how their inspirations are formed, how their political and social perspectives are formed, and what their opinions are informed by. For the very first interview, I'm very happy to have Mr. Arif Ajakiaji with me. Let's begin with the interview. Arif ji, namaste and welcome. Namaste. Thank you very much for inviting. So, Arif ji, to give a brief introduction, he is London based, a Pakistan born French citizen, as he says, with the DNA of Bharat. He is the former mayor of Jamshed Town in Karachi. He is a human rights activist with the UN, a political analyst, and as most of you might already know, he runs a YouTube channel called Arif Ki Bhasha. That is basically where I first had my personal introduction with Arif ji, and I heard him talk about various things. So, Arifji, to begin with, I was very interested when you said you have this DNA of Bharat. So, what was your story behind that? Like, how did your connection and your inspiration with Indian culture and heritage, वो कहाँ से शुरू हुई? To begin with, my parents both were born in Gujarat state of India. Mhm. And they migrated in 1947 to Pakistan. And in the beginning, in my childhood, my mother, my father, because everyone remembers their childhood. Hmm. So they always narrated me stories about my mother, always speaking about her village, Batwa, which is in Gujarat, that how life was in Batwa and this and that. My father used to narrate stories that I used to go to Mumbai with my father because my grandfather was a trader of food grains. So he used to say that I used to go to Rajkot, Porbandar, Mumbai with my father. So India was quite close to our heart because my parents always spoke good. But Hmm. when we went out of the home, we always heard that India is our enemy. Hindus are Muslims' enemy. And that's what I call a churan. This churan was given to Pakistanis since beginning because Pakistan was controlled by Pakistan's brutal army, and the army, for sustenance of its might, they wanted an enemy. So they created an enemy in India, and they said that India is our enemy, so that people keep their wish and their support to Pakistan army, that yes, we need an army because India is an enemy and Hindus are enemy and this and that. Uh, in madrasas, in schools, we used to learn all these things. Distorted history was taught to us. Mahmud Ghaznavi was my hero, and we used to take pride that he attacked Somnath 17 times and this and that. But when I came out of Pakistan and I started learning the true history, and when I got involved in human rights activists, there I come to know that Pakistan is a theocracy. Pakistan is a state created with certain designs by West after Second World War to contain communism, to contain a potential superpower of India. Pakistan was created, and Pakistan's brutal army has committed wars against crimes against humanity, like genocide of Bengalis, genocide of Baloch, and this and that. The shocking change of my attitude came very few years back when in London I went to a shop, and I met a guy there, and he said that, "Are you from India?" I said, "No, I'm from Pakistan." And I said, "You?" He said, "I'm from India." I said, "Which state?" He said, "Well, we are from Gujarat, but I've never been there because our families migrated some centuries ago to East Africa."
Mm. And there I started thinking that they migrated before centuries to Africa and they are calling themselves Indian. And we were forced to push to Pakistan before just 70 years. And I'm saying that I'm not Indian. I said, no, then it is my country and I'm Indian. Unluckily, I'm born in a political Pakistan. Mm. The bigger change came in when came to know that Somnath is just a few kilometers from my ancestral village. Mm. And then I started realizing that when Mahmud Ghaznavi came, he killed my ancestors and he kidnapped and enslaved my ancestral women and men and sold them in Ghazni, in Damascus, in Baghdad. And then I was ashamed. And a sense of guilt came in me that what will I show my face to my ancestors? Mm. That I was taking pride in a man, making him my hero, who butchered my ancestors, who enslaved my. So this brought a big change in me. And I said that no, I have to correct myself and Mm. I have to spread the correct message. So this was the change which brought me closer to my DNA, to my roots. And I feel that I am an Indian Mm. rather than being a Pakistani. Wow, that's such a wonderful personal story. और आजकल ये हमें I think we get confused between this thing that it is not between Hindus against Muslims or it's not between them. It is about knowing who your invaders were, who your actual heritage was, and who is violent and non-violent. I think that's the basic difference, which many people kind of don't see nowadays. I think that we have to look at it in a way that it is a Satya Vachan. Now, for example, Somnath was destroyed by Ghaznavi 17 times, but Mm. Somnath is standing high, tall, with respect and with honor even today. And the ones who destroyed Somnath 17 times, Afghans, Mm. they are destitute, they have no respect, they are called terrorists globally, they are looking to very same India for help. And this my noble country India is reconstructing Afghanistan. India is the only country in the world who is doing rebuilding of Afghanistan. Otherwise Russians, America, Europe, Pakistan, Saudi Arab, they all brought destruction to Afghanistan. The only country that is rebuilding its civil society, its police, its army, its infrastructure, it is India. India is making dams there, India is making infrastructure there, and India is giving them money, India is giving them aid, loan, everything. So then it shows that what is Satya Vachan. This is Satya Vachan Mm. out of religion. There Out. is no religion in this, Yes. as you say. Yes, yeah, I think that's a very important point जो आजकल के लोग काफी भूल जाते हैं, and especially on social media, the discussion doesn't involve these deeper points. It's very superficial. It's very superficial, I feel. देखिए मैं मुसलमान हूँ Mm. लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सनातनी भी हूं, Mm. क्योंकि गीता कहीं आपको पाबंद नहीं करती कि आप मुसलमान हो या आप फलां भगवान की पूजा करते हो, आप या फलां। गीता आपको फिलोसॉफी ऑफ लाइफ देती है। Mm. एंड द वन हु बिलीव्स इन गीता's फिलोसॉफी इज सनातनी। अब Mm. उसके बाद मैं अपने कौन से भगवान, कौन से खुदा की पूजा करता हूं, दैट इज प्योरली माय पर्सनल इश्यू एंड दैट इज Exactly. योर Mm. पर्सनल इश्यू। Mm. ये होना भी यही चाहिए कि आपका किस भगवान की आप पूजा करते हैं, ये आपका जाती मसला है। Mm. इसमें आपकी फैमिली तक को भी इन्वॉल्वमेंट की इजाजत नहीं, क्योंकि मरने के बाद अगर आपका कोई भगवान है, उसके सामने आप जाते हो, तो वो Mm. आपकी फैमिली से आपका हिसाब नहीं मांगेगा, वो आपसे ही आपका हिसाब It's मांगेगा। one to और one. अगर कोई भगवान है दुनिया में, वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि तुमने इंसानियत के लिए अच्छा किया कि बुरा किया, Mm. क्योंकि इंसान इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑलमाइटी। Mm. अगर आपने इंसान के ऊपर जुल्म किया है सिर्फ इसलिए कि वो आपके भगवान की पूजा नहीं करता, तो आई डोंट थिंक दैट ही विल बी मर्सीफुल दैट मच के वो आपको माफ कर देगा। वो कहेगा नहीं, तुमने इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया है क्योंकि सिर्फ वो दूसरे भगवान की पूजा करता था, तो फिर तो गलत है। तो Mm.
हमें ये चीजें जरूर देखनी होंगी कि हम फिलोसॉफी ऑफ लाइफ पे बिलीव करें, हुँ, ना कि हम ये कहें कि नहीं जी तुम मुसलमान हो, खाली तुमने कलमा पढ़ लिया इसके बाद तुम रेप करो, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम इंसान को मारो, लेकिन तुमने कलमा पढ़ा है इसलिए तुम तो जन्नत में जाओगे। लेकिन एक हिंदू है या एक क्रिश्चियन है या एक यहूदी है, वो सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत करता रहे, लेकिन चूंकि उसने कलमा नहीं पढ़ा इसलिए वो जन्नत में नहीं जाएगा। That हुँ। is a fact theory that I don't believe in. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आरिफ जी। और आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? आजकल वी टॉक अ लॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, बट आई थिंक इट इज़ वेरी हर लोग अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन देते हैं। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल फ्रीडम व्हिच वी ऑल टॉक अबाउट। So it has its own preconditions, which I don't think that's how freedom of expression should be. If it is there, it should be universal. और आपकी experience कैसी रही when you are putting forth your outlook and your perspectives? देखें, दो चीजें हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये मादर पिदर आजादी है कि आप जो जिसकी मर्जी आए बोलें, ये भी गलत है। Hmm. मैं बिलीव करता हूँ, खासतौर पे एथेइस्ट से मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस Hmm. बेस पे कि एथेइस्ट ये कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ. देखें, you have all right to not believe on any god, Hmm. but you don't have a right to humiliate others' gods. Very अगर आप true. ग्रुप ऑफ पीपल को, लाइक चार्ली हेब्डो, Hmm. चार्ली हेब्डो को मुसलमानों के भगवान की, अल्लाह की या मोहम्मद की बुराई करने की, उनकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। इसी तरह जो एथेइस्ट भगवान राम को, भगवान शंकर की टी Hmm. शर्टें बना के ह्यूमिलिएटिंग, वो उनको राइट नहीं है। अगर एथेइस्ट को राइट है टू नॉट बिलीव ऑन एनी गॉड, तो दूसरों को भी राइट है टू बिलीव ऑन एनी गॉड। और ये एथेइस्टों ने अपना वो मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में। मैं कहता हूँ एथेइस्ट से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे इन्होंने एक ही काम पकड़ कर रखा हुआ है कि सबके भगवानों की ह्यूमिलिएशन करो। Yeah. दिस इज नॉट योर जॉब। यू डोंट बिलीव, यू डोंट बिलीव, इट डज नॉट मीन Yeah. दैट यू स्टार्ट ह्यूमिलिएटिंग। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे आपको देखना होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को ह्यूमिलिएट करें। Hmm. आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को इस तरह ह्यूमिलिएट करें। तो हैविंग सेड दैट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट मैं प्योरली ह्यूमन राइट्स पे वो करता हूँ कि Hmm. भाई एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, जो कि यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर का भी पहला क्लॉज है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी, व्हाटएवर। Hmm. सब बराबर है, Hmm. सबको बराबर का हक हासिल है। चाहे वो जिस देश में रहता है, उसको अपने रिलीजन को भी प्रैक्टिस करने का हक है, उसको अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी प्रैक्टिस करने का हक है। हमारे साथ ये होता है कि हम एक ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, कि वहां पे ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं। वहां पे इंसानियत का कत्ल रोज होता है। और हम जैसे लोग जो बाहर बैठ के ये सोचते हैं कि हम तो एक सेफ कंट्री में हैं और Hmm. हम आवाज उठा लेंगे, हम ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय करते हैं, तो उसकी कीमत ये होती है कि हमारी एक बहन है, बलोच राइट्स के लिए आवाज उठाती थी, करीमा बलोच। वो जी। पाकिस्तान से जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागी। Hmm. उसके भाई को मार दिया पाकिस्तान में, उसके चाचा को मार दिया, उसके भतीजों को मार दिया, उसके कजन्स को मार दिया। वो बेचारी वहां से जान बचा के कनाडा पहुंची और उसने लिखा वहां पे अखबारों में कि आई एम नाउ इन ए सेफ कंट्री। वो बेचारी 2 हफ्ते पहले मार दी गई कनाडा में। Hmm. साजिद हुसैन नामी बलोच जर्नलिस्ट जो आवाज उठाता था बलोचों के लिए, उसको स्वीडन में मार दिया। 2 महीने गायब रहा और 2 महीने बाद इसकी लाश एक दरिया से मिलती है। Hmm. कल साउथ कोरिया सियूल में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं राहत ऑस्टिन, जो कि पाकिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के ऊपर आवाज उठाते हैं और Hmm. वो रेगुलरली लिखते हैं। कल उनको कुछ लोगों ने पकड़ के मारा, छुरियां मारी और उनको इतना मारा वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। और मुझे राहत भाई ने 2-3 हफ्ते पहले कुछ तस्वीरें और वीडियोस भेजी थी कि आरिफ भाई देखें मेरा पीछा हो रहा है और ये 4 पाकिस्तानी कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरी फैमिली के साथ मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरा पीछा कर रहे हैं। और कल फिर इनको इतना मारा पीटा गया और आज उनका फोन आया कि मैं सुबह से पुलिस स्टेशन में बैठा हूं क्योंकि मेरे ऊपर इस्लामिक काउंसिल ऑफ कोरिया ने केस कर दिया है कि आई एम डूइंग इस्लामोफोबिया, और मैं इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहा हूँ, ये Hmm. वो।
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। हम्म, जितनी धमकियां हमें मिलती हैं इन देशों में जहाँ पे हम समझते हैं कि हम फ्री हम हैं, सेफ हम है, सेफ हाँ। हैं, हाँ। यहाँ पे इंग्लैंड जैसे जिहादी मुल्क में मैं रह रहा हूँ, जिसको मैं लंदनिस्तान कह रहा हूँ, यहाँ पे किस खौफ में हम रहते हैं और किस हिसाब से। अभी मुझे 3 हफ्ते पहले करीमा के नेक्स्ट डे मुझे धमकी आई हम्म, इसी मैनचेस्टर से। एक आदमी ने फेसबुक पे धमकी दी कि नाउ इट इज योर टर्न एंड वाह। वी विल योर वाइफ एंड वी विल रेप हर डेड बॉडी। मैंने ट्विटर पे ये हाँ, मैं फौरन देख रही कॉल थी लगाया तो हाँ। मुझे ब्रिटिश पुलिस ने, मेट पुलिस ने मुझसे कांटेक्ट किया और अब वो इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो दिस ओके। इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी आर पेइंग। राइट। आई थिंक ये दो एक्सट्रीम्स पे जाती है। एक एक्सट्रीम पे जैसे आपने कहा कि यू हैव द राइट टू ह्यूमिलिएट एनीबडी, और दूसरी एक्सट्रीम पे ये है कि इफ यू डोंट एग्री विद व्हाट आई से देन यू डोंट हैव द फ्रीडम। आई थिंक दोनों गलत है। इट्स आई थिंक इट्स टू डू विद मे बेसिक डिग्निटी जो एक ह्यूमन होने से बनती है। दैट शुड बी आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड होपफुली थिंग्स विल बी बेटर आई गेस। भाई देखें, जब आप गलत होते हैं ना, क्योंकि ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो गलत फिलोसॉफी पे काम कर रहे हैं। वो टोटली एक गलत नैरेटिव्स पे वो चला रहे हैं। तो फिर इनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनके पास दलील नहीं होती। जब इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रह जाता तो फिर गाली पे आ जाते हैं। जब दलील नहीं होती तो गाली पे आ जाते हैं, फिर वो धमकियों पे आ जाते हैं। वो आपके खिलाफ वायोलेंस को यूज करते हैं। और हम लोग जो ह्यूमन राइट्स वर्कर होता है ना, वो नॉन वायोलेंट होता है, वो वायोलेंस पे टोटली बिलीव नहीं करता। और हम कहते हैं कि डायलॉग और को एग्जिस्टेंस इज द बेस्ट वे। लेकिन इन लोगों के पास ये बेस्ट वे नहीं होता। जब भी ये छोटी सी बात पे बंगलोर जैसे शहर को आग लगा देते हैं एक साथ खड़े होके। तो ये है कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने फेसबुक पे एक कमेंट के जवाब में आपको सही वो किया, आईना दिखाया, तो आपने पूरे शहर को आग लगा दी। तो अगर आप सही होते हैं ना तो आप ये कभी नहीं करते। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। या तो आरिफ जी, आपकी एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में भी रही है, एंड ऑफ कोर्स नाउ यू आर वर्किंग एज एन एक्टिविस्ट। व्हाट डू यू थिंक इज मोर चैलेंजिंग? एंड आई मीन, आई एम श्योर बोथ द फील्ड्स एंड बोथ द रोल्स विल हैव देयर ओन काइंड ऑफ challenges एंड डिफिकल्टीज, पर आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही, एंड व्हाट डू यू थिंक सूट्स आई डोंट नो द करंट डे नैरेटिव्स मे बी? देखिए, पॉलिटिक्स तो जब तक मैं पाकिस्तान में था तब तक थी ना। अब पाकिस्तान जैसे देश में तो ब्लडी पॉलिटिक्स होती है, मतलब वायोलेंट होती है, जिसमें खून होता है। वहां पे कत्लो गारत, वायोलेंस का बड़ा इस्तेमाल। इंडिया में भी एक हद तक थोड़ा बहुत काफी हद तक था। अब आस्ते आस्ते वो कम हो रहा है। तो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया इज वेरी डर्टी गेम। फिर इसमें दूसरा एक चीज है, बड़ा गंदा फैक्टर है डायनास्टिक पॉलिटिक्स का। डायनास्टिक पॉलिटिक्स में यह होता है कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो एक पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। वो चेयरमैन इसलिए बने कि उनकी माँ बेनजीर भुट्टो थी। राइट। अब जब ये पैदा हुए थे तो जिन अंकलों ने इसको गोद में खिलाया था, आज वो उसके सामने अदब बना के खड़े हैं। वो अंकल्स ऑफ पीपल्स पार्टी जिन्होंने 50 साल 60 साल उस पार्टी में निकाले हैं, वो आज सिर्फ इसलिए बिलावल को चेयरमैन मान रहे हैं। यही चीज आपको राहुल गांधी में मिलेगी बिल्कुल, आई कि वाज जस्ट या चिदम्बरम जी हैं या जितने सीनियर लीडर्स हैं, या इवन शशि थरूर जो कि एक बड़ा एकेडमिक नाम है, बड़ा स्ट्रांग पॉलिटिशियन है, लेकिन वो सिर्फ राहुल गांधी को इसलिए चेयरमैन मान रहा है कि वो राजीव गांधी साहब के बेटे हैं, या फिर वो इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। जैसे आपको यूपी के एक चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव, वो सिर्फ इसलिए चीफ मिनिस्टर बन सके कि उनके फादर पॉलिटिशियन थे। या बिहार में भी आपको ये चीज मिलेगी, आपको इंडिया में ये बहुत ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, चूंकि उनकी मदर भी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका बाप भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। दूसरी तरफ है नवाज शरीफ की बेटी, क्योंकि उनका बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, उनका चाचा चीफ मिनिस्टर था। तीसरी तरफ है मौलाना फजलुर रहमान, उनके बाप मौलाना मुफ्ती महमूद पाकिस्तान नेशनल अलायंस के चेयरमैन थे, जिसने भुट्टो को फांसी लगवाया और जियाउल हक का मार्शल लॉ लाया। इसी तरह बांग्लादेश में आपको मिलेगा कि जनरल जिया मर जाता है तो उसकी बीवी खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनती है।
मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बनती है। यही चीज आपको श्रीलंका में मिलेगी कि बंदरा नायक के फिर उनके हस्बैंड और फिर उनकी बेटी। तो ये बड़ी एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स है ना। तो आपने जो सवाल किया था कि पॉलिटिक्स इज ए नोबल कोज, लेकिन आज के जमाने में पॉलिटिक्स इज ए मनी मेकिंग बिजनेस, और ये बड़ा गंदा खेल है। खास तौर पे पाकिस्तान जैसे देश में पॉलिटिक्स करना, तो या तो आप वायलेंस पे बिलीव करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, या तो आप करप्शन पे बिलीव करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। रहा सवाल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म है ना, वो सेल्फलेस जॉब है। उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस होता है। हमें अपनी इस फैमिली के टाइम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें अपने जेब से भी खर्चा करना पड़ता है। कि एक मिसाल है कि मैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स सेशन अटेंड करने के लिए हर साल जिनीवा जाता हूँ। अब जी। जिनीवा जाना साल में 3 बार, 2-2 3-3 हफ्ते के लिए। स्विट्जरलैंड इज ए वेरी एक्सपेंसिव सिटी। अब हुँ, वहां पे सस्ता टिकट लेके जाओ, सस्ते होटल और हॉस्टलों में रहो, बेकार खाना खाओ, तो भी आपका 3-4 हजार पाउंड लग जाता है। अब वो 3-4 हजार पाउंड आप अपने फैमिली बजट में से निकाल के देते हो, अनलेस कि हमें कभी कभी सपोर्ट मिल जाती है कि कोई ऐसा आदमी होता है जो आपको 200 पाउंड दे देता है, कोई 400 पाउंड दे देता है, कोई 100 पाउंड दे देता है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, कभी कोई एनजीओ टिकट दे देता है, कभी इस तरह होता है। लेकिन स्टिल वी कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, फिर हुँ, अपना फैमिली टाइम देते हैं। अब जैसे ये जो सोशल मीडिया एक्टिविज्म है, इट हाँ। टेक्स आवर्स। और इट टेक्स आवर्स का मतलब यह है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे 24 घंटे एक ही शिकायत करते हैं कि आपके पास हमारे लिए तो टाइम है नहीं। हुँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि वहाँ इंसान मरता है, पाकिस्तान में इंसान मर रहा है। कम से कम हम अगर एक इधर आज़ाद देश में बैठे हैं, तो हुँ, आवाज़ तो उठा सकते हैं, हम अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है, कोई मकसद है, कोई टारगेट है, तो फिर यही रह गया एक। बाकी तो क्या अब मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए यही एक सफ़र है, हुँ, जिसको मैंने अपने मरते दम तक जारी रखना है। हुँ। बड़ी अच्छी पॉइंट्स बताई आपने जो आपने कहा कि एक्टिविज्म बड़ी सेल्फलेस जॉब होती है। एक्चुअली बाय डेफिनिशन पॉलिटिक्स भी सेल्फलेस होनी चाहिए। इट इज़ टू सर्व राइट। अदर्स, बट नाउअडेज इट्स बिकम मोर अबाउट सर्विंग योरसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट जस्ट पावर एंड करप्शन। इवन वेस्ट में भी यही है। आपको अमेरिका का सदर भी इलेक्शन जीतने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का चंदा जमा करता है। एक सेनेटर को कई मिलियन डॉलर जमा करने पड़ते हैं, चैरिटी अपने वो डोनेशन, और फिर जाके वो जीत सकता है। तो गरीब आदमी का तो इसमें कोई काम रहा ही नहीं है, अनलेस कि आपके पीछे कोई कैपिटलिस्ट हो। तो ये हुँ, कहते हैं कि दुनिया में सारे फैसले हैं जो वो 500 बड़े बिजनेसमैन ही डिसाइड करते हैं कि हुँ, कौन से देश में कौन सी गवर्नमेंट आनी है, कौन से देश में क्या होना है। तो पॉलिटिक्स पैसों का खेल है, पावर का खेल है, वायोलेंस का खेल है पूरी हुँ। दुनिया में। इट शुड बी सेल्फलेस बट इट इज नॉट, इट इज़ एंड नॉट। इट वाज नेवर। Mm. And unfortunately, nowadays, I think religion is also being mixed into politics a lot. That is the other major drawback of today's times. जो इंडिया में आजकल ज्यादा ही दिख रही है, बट आई थिंक द इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज आई गेस। देखिए, रिलीजन तो सेक्युलर देशों में भी होता है। बिल्कुल। जो बाइडेन एक सेक्युलर अमेरिका के सदर इलेक्ट होते हैं, अपनी पहली स्पीच में पीछे इतना बड़ा क्रॉस लगा के रखा था, हाथ एग्जैक्टली। में बाइबल पकड़ के उसके रेफरेंसेस दे रहे थे। जब कोरोना आउटब्रेक होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प हाथ में बाइबल पकड़ के अपने व्हाइट हाउस से निकल के पैदल मार्च करते हैं और यूं बाइबल दिखा रहे हैं सबको। हालांकि सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म ये मतलब कहीं नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दें। हाँ। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि आप अपने धर्म पे कायम रहें और दूसरों को धर्म की रेस्पेक्ट करें। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। अगर भारत में नरेंद्र मोदी जी एक मंदिर की पूजा में जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई हिंदू एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया है। ही इज प्रैक्टिसिंग हिज रिलीजन एंड प्राउडली ही इज डूइंग। भारत में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अभी तक आई नहीं है। हम्म। मैं आपको बता दूं कि 85% हिंदू रहता है उधर। लेकिन आपके आंध्र प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में कोई 5-6 मंदिरों के ऊपर धावा बोला है, और जी। मंदिरों में भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। एक मंदिर की वीडियो वायरल चल रही है, जिसमें क्रिश्चियनों ने जाके अपनी रिलीजियस सर्विसेज दे रहे हैं और पुजारी उनको रोक रहा है तो उसको धमकियां दे रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं, हाँ। ये भारत में हो रहा है। आपके चांदनी चौक दिल्ली में
2-3 दिन पहले केजरीवाल साहब ने एक पुराने तारीखी मंदिर को बुलडोज कर दिया। जी। लेकिन आपके भारत में गली-गली में आपको मस्जिद मिलेगी, और हुँ, आप अगर एक, मैं तो मेयर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक रोड सीधा जा रहा है, हाँ, बीच में मस्जिद है, तो रोड को यूं टर्न किया गया है, तो इसका मतलब वो मस्जिद इल्लीगली बनाई गई है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट प्लान में रोड के बीच में कोई चीज नहीं होती। नहीं होती। और हुँ, लेकिन मस्जिद बन गई ना, अब किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वो उसको तोड़ देगा, वरना तो हंगामा मच जाएगा। इसी तरह क्या है कि मैं किसी भी इलाके में, थोड़ा सुनसान इलाका है, वहां पे खड़ा खोद कर उसमें किसी गधे की लाश भी दफन करके उस पर ग्रीन चादर डाल के, ये जी मजार बन गया बस। अब मैं वहां पे बैठ के धंधे कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, मैं चादरें बेच रहा हूँ, प्रसाद बेच रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, लेकिन अब किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वो मजार तोड़ के दिखाए। जी। आप मजारों को खोद के देख लें, आपको ज्यादातर उसमें या तो कोई कोई डेड बॉडी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कोई जानवर की डेड बॉडी होगी। ये हुँ, आर्टिफिशियल मजार आते हैं। ये धंधा है, सब गंदा है पर धंधा है ये। है। और ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये बहुत है ये। कॉमन तो है। रिलीजन का फैक्टर जो आ गया है ना पॉलिटिक्स में, आ नहीं गया, ये भी शुरू से ही है। भाई हुँ, भारत पाकिस्तान की तकसीम, division of India was on the basis of religion. That was also politics. या That was done by two politicians, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah. They were two politicians. They played on religious grounds. राइट। तो रिलीजन का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, they use it to manipulate people's emotions and they do it in the wrong way. At least वो एक अच्छी if they take it in the right direction and inspire people to do better, at least उसका एक अच्छा मकसद होता है. But I think they use it to manipulate and kind of, that's why we see so many negative outcomes. तो यहाँ yeah. पे यूरोप में सेक्युलरिज्म की ट्रू पिक्चर है, यहाँ पे किसी को रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होता। Mm, यहाँ पे मुसलमान भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिश्चियन भी कर रहा है, हिंदुओं के भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे भी हैं, और कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, ना स्टेट बोलती है, ना कोई एंटिटी बोलती है। mm, दिस इज ट्रू सेक्युलरिज्म। भारत में ऐसा नहीं है। भारत का सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि दिवाली आएगी तो हर आदमी उसको कंट्रोवर्शियल बनाएगा कि पटाखे नहीं फोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तेल लगा रहे हो, अरे तेल लगाने से क्या होता है, दिवाली में तुम लोग इतना तेल जाया कर रहे हो, mm, भगवान शंकर के ऊपर दूध डाल रहे हो, जाया कर रहे हो। होली में तुम लोग एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो, पानी जाया कर रहे हो। लेकिन कभी किसी बकरा ईद पे आपको एतराज नहीं मिलेगा जिसमें गली गली में खून बह रहा होता है। तो mm. भारत का सेक्युलरिज्म इज सिक्युलरिज्म, नॉट सेक्युलरिज्म। राइट, राइट। और मेरे हिसाब से ये जो अभी जो हिंदुत्व की नैरेटिव चल रही है, आई थिंक इट इज मोर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट यू सेड एज अ सेक्युलरिज्म। तो आपने काफी कुछ देखा है, जाना है, तो आपका क्या राय है इस हिंदुत्व के बारे में? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट? देखिए, या तो भारत में आपको लाना होगा ट्रू सेक्युलरिज्म। जी। सेक्युलरिज्म क्या है हम्म, कि स्टेट हैज नो रिलीजन। हम्म, मैं इंग्लैंड की मिसाल अच्छा, देता हूँ। हम्म, इंग्लैंड में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, दस देर इज नो माइनॉरिटी। तो भारत का कैसा सेक्युलरिज्म है जिसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं लेकिन देर इज ए माइनॉरिटी। जब स्टेट माइनॉरिटी। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, इसका मतलब एवरी रिलीजन इज इक्वल, ना हम्म, कोई मेजोरिटी है ना कोई माइनॉरिटी है। नंबर वन। तो हम्म, या तो आपको सेक्युलरिज्म लाना है तो माइनॉरिटी वर्ड को खत्म करना होगा। आपको माइनॉरिटी कमीशन, आपको वक्फ बोर्ड, आपको इस्लामिक बोर्ड, आपको जक़ात बोर्ड, आपको अपीजमेंट के हज के लिए सब्सिडियां दे रहे हैं, तो फिर मेजोरिटी राइट कहाँ है? एग्जैक्टली। फिर अब माइनॉरिटी मेजोरिटी खेल रहे हैं तो मेजोरिटी राइट कहाँ है? हिंदुओं को क्या सब्सिडी मिल रही है? आपके केरला में 26% पॉपुलेशन है मुस्लिम, जी। वहां पे 23,000 मदरसे हैं। हम्म, हर मदरसे के हर टीचर को स्टेट वहां पे 25,000 रुपया सैलरी देती है। कहां से देती है? हम्म, टैक्स पेयर मनी। टैक्स पेयर कौन है? 85% हिंदू है। मेजोरिटी। हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से आप मुस्लिम मदरसे के टीचर को पैसा दे रहे हैं, तो भाई हिंदू गुरुकुल कहाँ है भाई? कहाँ है? नहीं है फिर। नहीं। जी। सवाल यहाँ पे यह है कि भारत का सेक्युलरिज्म या बड़ा खराब है। या हम्म, तो फिर आप इसको हिंदुत्व गवर्नमेंट बना दें कि हाँ भाई हिंदू इज ए राष्ट्र रिलीजन, हम्म, स्टेट रिलीजन हिंदू है, फिर आप माइनॉरिटीज को सारी अपीजमेंट दे रहे हैं, हम्म, समझ में आता है।
स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, सेक्युलरिज्म है। तो फिर अभी तो आपने, मतलब भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पे हिंदू एक्सट्रीमिज्म है और हिंदुत्व है। हम्म। अभी तो आपने एक्सट्रीमिज्म देखा कहाँ है? हम्म। आपको एक्सट्रीमिज्म देखना है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखें कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किसको कहते हैं। परसों बलोचिस्तान पाकिस्तान में 11 शिया लोगों को मार दिया, मुसलमान शिया, सिर्फ हम्म। इसलिए कि देवबंदी समझते हैं कि शिया काफिर है। ये हम्म। है एक्सट्रीमिज्म। आपके यहाँ तो अभी कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं। आपके यहाँ केरला में बीफ खुला आम खाया जाता है। हम्म। आप पाकिस्तान में सुअर खिला के दिखा दे मुझे। हम्म। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि सुअर का गोश्त बेच दे। आपके केरला स्टेट टूरिज्म बोर्ड बीफ करी की पब्लिसिटियां कर रहा पब्लिसिटी करती है पोस्टर लगा के, या। है। तो फिर ये एक्सट्रीमिज्म तो ना हुआ। एक्सट्रीमिज्म कैसे हो सकता है? दूसरा, आपके यहाँ एक बड़ा मसला है कि एक इन्वेडर आता है बाबर नाम का। वो आके आपके भगवान राम जी के जन्मभूमि पे कायम मंदिर को तोड़ के उस पे मस्जिद बनाता है। एक मस्जिद। अभी तो 4000 मस्जिदें इलीगल हैं मंदिरों पे। एक मस्जिद को हिंदुओं ने 1000 साल की कोशिश के बाद वापस हासिल किया। तो उसके बदले में अपीजमेंट क्या देनी पड़ी? 5 एकड़ जमीन देनी पड़ी मस्जिद के लिए। करोड़ों रुपए का फंड देना पड़ा कि वहां पे आप हॉस्पिटल भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, मदरसे भी बनाओ। और वो सब हलाल होगा, यानी हलाल से मतलब मुसलमान ही उधर जाएगा। ओके। ये बड़ा क्वेश्चनेबल थिंग है। आज सुबह मुझे एक आदमी ने एक वीडियो भेजी, मुझे याद नहीं कौन सी इलाके की है। उसमें मंदिर है, उसकी हम्म। 4 दीवारी है, 4 दीवारी के अंदर कंपाउंड में मस्जिद बनी हुई है। अब अगर आप वो मस्जिद तोड़ते हो तो आप हिंदुत्व। हाँ, आप दुर्गा पंडाल में आके अजान दे दो तो आपको कहा जाएगा ये तो सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म है, हाँ। तो जी, किसी वो तो मस्जिद है। में आप हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दें हम्म। तो मैं मानूंगा कि सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म है जी। ये मसला है कि मुसलमान कहे मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मैं हम्म। जय श्री राम नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदू से आप जाके ममता जी है वो मस्जिद में बैठ के यूं सर पे चादर ओढ़ के दुआ मांग रही हैं। राहुल गांधी जी हैं ग्रीन चादर लेके सर पे टोपी लेके दुआ मांग रहे हैं। हम्म। अरे भाई, अपीजमेंट की इंतहा है। तुम हिंदू हो, रेस्पेक्ट करो। हाँ। मुसलमान के धर्म की रेस्पेक्ट करो, वहां जाकर मुसलमान नहीं बन जाओ। हाँ। ये है फर्क, ये है मसला। अभी भारत में कहीं हिंदुत्व नहीं है, कहीं हिंदू एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हम्म। या तो आप खत्म करो सारा सेक्युलरिज्म का ड्रामा और फिर आप हिंदू राष्ट्र धर्म बनाओ तो हम्म। समझ में आता है। अदरवाइज फिर ये माइनॉरिटीज का ड्रामा बंद करें। सबको इक्वल है। हम्म। कोई किसी को आप ज्यादा राइट्स, रिजर्व सीट्स हैं तो उनको मुसलमानों को हर चीज में रिजर्वेशन भी देनी है। ये गलत है फिर। जी, अभी बीच में अटकी हुई है, ना इधर का ना उधर का। तो बट आई थिंक द गुड थिंग इज आजकल काफी सारे यंगस्टर्स जाग रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग दैट आई सी. And many people are taking to studying history, studying the culture, actually knowing what exactly the heritage is about, which I think is a wonderful thing. और आरिफ जी, आपकी अगर एक एडवाइस है to the youngsters of people of today's generation, what would it be? जिस तरह मुझे 50 साल, मेरी उम्र 56 साल है, तो हम्म। मुझे अपनी जिंदगी के पहले 50 साल तक अपने इतिहास का नहीं पता था, करेक्ट इतिहास का। तो हम्म। आज मैं पछता रहा हूँ। तो यंगस्टर्स को चाहिए कि अपनी करेक्ट हिस्ट्री को पढ़ें। हम्म। आपको अपनी करेक्ट हिस्ट्री पढ़नी है तो आप अपने इंडिजिनियस रूलर्स को स्टडी करें। हम्म। जैसे कि अशोक थे, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी थी। ना कि ये दुनिया का वाहिद देश है जहां पे इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया गया है। किया मैं जाता है। किसी भी इंडियन को जाके पकड़ के हिंदू को पूछूंगा कि जरा मुझे चोला डायनेस्टी के 5 राजाओं के नाम बता दो, तो उसको शायद एक का भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि मुगल एम्पायर, जी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हम्म। और ये कौन थे? ये इन्वेडर थे, ये Invader. इंडिजिनियस भारतीय नहीं थे। ये हम्म। बाहर से आए थे, लूटमार करने आए थे। इन्होंने देखा यहाँ तो गुलामों की फौज है, चलो यहीं बस जाओ। यहाँ पे वो गुलाम हैं जो दक्कन फैमिन होता है 1631 में, 2 मिलियन इंडियन मर जाते हैं भूख से। लेकिन आपका बादशाह शाहजहां
एक ताजमहल बनाता है 1632 में, 20 साल तक 20,000 मजदूर उसमें लगे रहे। हम्म, क्यों? कौन था शाहजहां? इन्वेडर था। आपके जावेद अख्तर टाइप के लोग कहेंगे कि पैदा तो भारत में हुआ था ना, तो पैदा तो लॉर्ड माउंटबेटन का भी बच्चा यहाँ पे हुआ था, तो क्या वो भारतीय हो गया? तो मसला ये है कि हमारे यंगस्टर्स को करेक्ट हिस्ट्री पढ़नी होगी। हम्म, स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर इन्वेडर्स। हम्म, टीपू सुल्तान के आबाओ अजदाद तुर्क थे। उनको ऑटोमन अंपायर ने इंडिया में जागीर दी थी। हैदर अली इंडिया में जागीर के मालिक बने। टीपू सुल्तान ने लाखों, हजारों नहीं लाखों हिंदुओं को मारा है, हम्म, कन्वर्ट करने की कोशिश की है, मंदिर तोड़े हैं। टीपू सुल्तान को अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ा था, भारत भारत को बचाने के लिए। अबे मुस्लिम गवर्नमेंट को बचाने के लिए किया था, अपने मुस्लिम रूल को बचाने के लिए किया था। और वो कैसा भारतीय था जो अहमद शाह अब्दाली जैसे दरिंदे को दावत देता है कि तुम मेरे साथ आओ। क्यों? अंग्रेज से लड़ने के लिए नहीं, मराठों से लड़ने के लिए। मराठा इंडिजिनियस इंडियंस के खिलाफ लड़ने के लिए अब्दाली जैसे दरिंदे को दावत देता है, वो आपका हीरो है। तो ये चीज हमें समझना होगी। 3 दिन तैमूर ने आपके दिल्ली में कत्लेआम किया, 1100 कुछ में। 3 दिन एक आदमी नहीं बचा, सारी औरतों का रेप किया। उसकी लाखों की फौज थी। दिल्ली में सड़कों पे पांव यहां यहां तक खून था। और फिर 3 दिन बाद हालत यह हो गई दिल्ली की कि बू इतनी थी लाशों की कि इसकी फौज रह नहीं सकी थी, तो उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने तैमूर ने कहा कि अब निकल जाओ यहां से, वरना हम खाली बू से मर जाएंगे, गंदगी से मर जाएंगे। आज आपके भारत में तैमूर नाम मुसलमान बड़े खुशी से रखते हैं। ये आज की जनरेशन को समझना होगा। आपके बच्चे का नाम रखना आपका अधिकार है, लेकिन फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि एक जर्मन कभी भी अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखेगा। तो आपको अपनी करेक्ट हिस्ट्री पढ़नी होगी। हम्म, आपको अपने करेक्ट इंडिजिनियस रूलर्स को ग्लोरीफाई करना होगा, ना कि आप मुगल्स के शान वो करें। आप मुगल्स के ऊपर ताजमहल बना के दिया। क्या कंट्रीब्यूशन है भाई ताजमहल का? कोई ये बता दे मुझे। क्यों भाई हॉस्पिटल नहीं बनाया? भाई किंग एडवर्ड था या कौन था, उसकी भी बीवी कैंसर से मरी थी। हम्म, उसने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस बनाए। हमारे लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है। ये भाई साहब कुतुब मीनार, ताजमहल, बादशाही मस्जिद, ये चीजें बनाते रहे, आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम्म, तो जावेद अख्तर जैसे लेफ्ट के लोग हैं ना, वो इंडिया के लिए कैंसर हैं, बीमारी हैं, जो इंडिया की जनरेशन को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आप खुद आज अवेलेबल है सबके पास, हम्म, गूगल ये वो, खुद स्टडी करें, खुद ऑनलाइन किताबें ढूंढें, अपनी करेक्ट हिस्ट्री पढ़ें। आप खाली संजय दीक्षित साहब हैं, जयपुर डायलॉग वाले, इन्होंने हम्म, अभी अनब्रेकिंग इंडिया नाम से एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर जा रही है, काफी दो तीन हम्म, तीन चार हफ्ते से बेस्ट सेलर जा रही है। उस किताब को पढ़े, इन्होंने खाली पिछले 100 साल की हिस्ट्री दी है कि हम्म, क्या किरदार किरदार रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें आज की यंग जनरेशन को अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करने के लिए खुद पहले स्टडी करें। हम्म। जी, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आजकल। और आरिफ जी, एक तो होती है कि सच को जानना, एंड द अदर थिंग आई थिंक व्हिच टेक्स मोर करेज इज टू एक्चुअली put that truth out, to express that truth, and you have so much of courage and you really inspire a lot of people. देखें, कोशिश ही कर सकता है बंदा तो, Mm, ठीक है ना। मैं बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ यहाँ पे, mm, घर भी चलाना होता है। जी, मैं मेयर था, मेरे साथ के जो मेयर थे उनकी लंदन में भी जायदादें हैं, पाकिस्तान में भी जायदादें हैं, क्योंकि उन्होंने माल बनाया था, मैंने माल नहीं बनाया। मेरा 4 साल का टेन्योर था, मैंने 2 साल बाद ही रिजाइन करके आ गया, क्योंकि मेरी बीवी और मेरी माँ मेरे पीछे पड़े थे कि तुम क्यों वापस आए यूरोप से, तुम जाओ इधर से, mm, तुम्हारा इधर गुजारा नहीं, कोई मार देगा तुम्हें। तुम्हें तो 2 साल में हालत देख के, या तो आप करप्शन करोगे, आर्मी के mm, बूट चाटोगे, तो आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। जी, मुझसे ये दो चीजें नहीं हुई। मैं वापस आया,
और अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे ये घर दिया है, कौंसल ने दिया है, Mm, मैं तो अपनी डेली लाइफ के लिए भी अर्न कर रहा हूँ अब तक, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और इसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए करूँ। mm, सच बोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, विच आई एम ट्राइंग टू डू। mm. That's wonderful, Arifji. Thank you so much for joining with me today. It was such a pleasure to listen to you talk about so many things. And if I'd like to add just one more thing. You were telling me about the books that the youngsters need to read. एक और किताब है बाय द नेम ऑफ आवरणा. तो ये किताब पढ़ के मेरी पर्सनल आउटलुक चेंज हुई थी. सो इफ एनीबडी वांट्स टू गो हैव अ लुक एट दैट बुक, इट्स बाय अ कन्नड़ा राइटर. उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस आई है. So people can go have a look at that book as well. It's brilliant in terms of knowing the history and everything. और जी। जी, और ये मेरी पहली इंटरव्यू थी, सो अगर मेरे से कोई गलती हुई या मैंने कुछ गलत बोला है तो माफ कीजिएगा. एंड अगेन थैंक यू सो मच. Thank you very much for inviting. It was pleasure talking to you. It's always pleasure talking about the real issues of India, Pakistan, the region. जी. Thank you very much.